Hello dear students, how are you? Hope you all are fine at your home and doing studies well. Okay students, in the previous class we have already done here the brain teachers exercise, and in the brain teachers exercise we have already done here the क्वेश्चन 1 पार्ट ए. ब्रेन टीचर्स एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन 1 पार्ट ए कर चुके हैं और अभी हम करेंगे आंसर द फॉलोइंग द पार्ट बी. इन द पार्ट बी देयर इज गिवन हियर द स्टूडेंट सीइंग हियर देयर इज गिवन दैट after giving there is a question part B and question number A. In the question number A what will be asking here, after giving a डिस्काउंट ऑफ 8% ऑन द मार्क प्राइस के ऊपर अगर 8% का डिस्काउंट कर देते हैं, एन आर्टिकल वाज सोल्ड फॉर 414 रुपीज. तो आर्टिकल कितने रुपीज में बेचा जाता है? 414 रुपीज में. तो ये इसका एसपी हो गया 414 रुपीज एंड ये 8% डिस्काउंट दिया हुआ है और एमपी आपको निकालना है. तो इट्स वेरी सिंपल, हम पहले भी कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चंस. देखिए यहां दिया हुआ है आपको So let's see students, there is the question number first B part and there is the part A, discount percent is given here and SP is 414 rupees and we have to find here MP. There is the direct formula, no problem is there. SP into 100 by the 100 minus discount, put the SP here 414 into 100 minus discount is 8% and now it will be solved here and it will getting here the 450. Okay students, if you have any problem in this pattern, so ask me on the WhatsApp. Okay students, or by calling. Now there is the part B here. A fan is sold for 650 rupees. एक फैन को बेचा जाता है 650 rupees में. The gain is 1/4 of the cost of the fan. और जो गेन होता है इसके ऊपर वो फैन का कॉस्ट प्राइस का 1/4 पार्ट होता है. और एसपी ये है, सीपी हम सपोज कर लेंगे x, तो उसका गेन कितना हो जाएगा x/4. फाइंड द गेन परसेंट. गेन परसेंट आपको निकालना है. तो देखिए कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला है. एसपी आपको गिवन है 650 रुपीज एंड लेट द सीपी ऑफ द फैन इज x रुपीज. ये हमको सपोज करना पड़ेगा क्योंकि गेन क्या कह रहा है कि सीपी का 4th पार्ट है और सीपी हमें दिया हुआ नहीं है, तो हमें सपोज करना है x/4 पार्ट इज द गेन हियर. सो गेन होता क्या है, एसपी माइनस सीपी एंड एसपी इज 650 minus CP is x and gain is x/4. Now solve it. This x will become there, x/4 plus x. It will be 650 and x plus 4x by 4 is equals to 650. Okay. Now there is SP is 650 here. So what will we get here? 5x/4 is equals to 650 and x is equals to 4 comes to this place at then multiplying to 650 और 5 यहाँ आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा इक्वल टू की दूसरी साइड में. Hence CP x is what? X what will we suppose here? X is CP here. So CP कितना आ गया हमारे पास 130. अगर CP 130 है तो गेन कितना हो जाएगा? 130 का 4th पार्ट गेन था, 130 का 4th पार्ट किया हमने इसे कट नहीं किया क्योंकि हमें आगे इसे सॉल्व करना था और डायरेक्टली सॉल्व हो रहा था. कट करने पर बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, इसलिए हमने इसको कट नहीं किया. सो गेन परसेंट कितना हो जाएगा? 130 into 4 into CP. CP is 130 here. This is CP and into 100. It will be cut here. 0 is 0 cut. 130 is cut by 130 and 4 1 ja 4, 4 2 ja 8, 4 5 ja 20. It will be the 25%. Okay students, this will be the gain percent. Now there is the C part. A shopkeeper buys pencils at 10 pencils कितने रेट में खरीदी? 10 रुपीज में और उन्हें बेच दिया. 8 पेंसिल्स को बेचा उन्होंने 10 रुपीज के कॉस्ट से.
फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, तो उन्हें प्रॉफिट कितना हुआ, ऐसा क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में पहले कर चुके हैं, सो देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन इट. कॉस्ट ऑफ 10 pencils इज गिवन हियर 10 rupees. सो 1 pencil की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 10 divided by 10, that is 1 rupees. And SP of 8 pencils is given here, that is 10 rupees, and SP of 1 pencil is 10 by 8, that is 2 4 ja 8 and 2 5 ja 10, that is 5 by 4 rupees. And it will be the greater than 1 because this is the improper fraction, और improper fraction हमेशा 1 से greater होता है. So it will be the greater, SP is greater than CP, so profit is equals to SP 5 by 4 minus 1, that will be the 1 by 4 rupees. So प्रॉफिट परसेंट हम इजीली निकाल सकते हैं. फॉर्मूला है हमारे पास प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CP इंटू 100, एंड दिस विल बी द 4 से डिवाइड करेंगे 100 को तो 25 आएगा. 25%, 1 और 1 को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो नंबर खुद रहते हैं. Now there is a part D here. Find the rate of GST if an article marked at 5,000 is sold for 5,900 rupees. हमें GST का रेट ऑफ परसेंट निकालना है. अगर आर्टिकल का मार्क प्राइस इतना है और बेचा इतने में है तो GST का रेट निकालिए. तो GST कितना हो जाएगा, इसमें से ये माइनस करेंगे तो GST आ जाएगा, क्योंकि GST कॉस्ट प्राइस में प्लस होती है. तो देखिए यहाँ हमारे पास मार्क प्राइस है मार्क प्राइस है 5,000 एंड सेलिंग प्राइस है 5,900. सो GST कितना हो जाएगा, SP माइनस MP. 5,900 माइनस 5,000 दैट इज 900. GST परसेंट कितना हो जाएगा, 900 डिवाइडेड बाय 5,000 into 100. 2 zeros are cut there, 1 zero is 1 cut there, 5 1 5, 5 18 90, that is 18%. Is this clear? This is the D part. A person pays 2,800 rupees for a cooler marked at this price. एक कूलर खरीदता है एक पर्सन और उसे मार्क्ड करता है, मार्क प्राइस उसका कितना होता है, इतने पर खरीदता है. फाइंड द डिस्काउंट परसेंट, तो कितना डिस्काउंट दिया होगा उन्होंने. तो 35 में से ये माइनस कर दीजिए, वो डिस्काउंट मनी आ जाएगी. और डिस्काउंट अमाउंट परसेंट निकालने के लिए हम डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला लगाएंगे. दैट इज, सो दिस विल बी द 20. There is 3,500 the MP and SP is 2,800. Discount is 3,500 minus 2,800. It will be the 700 rupees. Okay, now discount percent कितना हो जाएगा, discount divided by MP into 100. Discount is 700, MP is 3,500 into 100. बेटा formulas आपको learn पहले होने चाहिए. If you have learned all the formulas kept in mind, then you will solve all the questions very easily. So this will be the 20% discount here. Now there is a question number second. Rajan purchased a purse at 25% discount on its marked price. Marked price पर 25% डिस्काउंट के हिसाब से लिया, बट सोल्ड इट एट द मार्क प्राइस. और किस पर सोल्ड कर दिया उन्होंने, मार्क प्राइस पर सोल्ड किया है. फाइंड द गेन परसेंट ऑफ द राजन ऑन दिस ट्रांजेक्शन. इस ट्रांजेक्शन पर गेन परसेंट कितना हुआ. देखिए गेन के लिए हमें SP और CP की जरूरत होती है. तो यहाँ हमें जो भी दिया हुआ है उसके हिसाब से हम पहले निकालेंगे कि MP कितना है और डिस्काउंट कितना है. CP निकालेंगे, देन MP निकालेंगे एंड देन गेन परसेंट निकालेंगे. देखिए कैसे. देयर इज गिवन हियर डिस्काउंट परसेंट इज गिवन हियर, दैट इज 25%. MP इज इक्वल्स टू, लेट्स सपोज दैट MP इज इक्वल्स टू X. सो CP कितना हो जाएगा, X में से 25% माइनस कर देंगे, क्योंकि जितने में उन्होंने बेचा वो तो उसका 25% लेस करके बेचा है उन्होंने. डिस्काउंट 25% दिया है मार्क प्राइस पर. सो मार्क प्राइस के ऊपर उन्होंने 25% का डिस्काउंट दिया, तो उसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, दैट इज 3x by 4. सो SP इज इक्वल्स टू, SP मार्क प्राइस के इक्वल है. So XP is equals to X and gain is equals to SP minus CP. CP is 3x minus 4, 3x by 4 and SP is X rupees. So gain SP minus CP, X minus 3x by 4, it will be the X by 4. So what will be the gain percent? Gain percent के लिए हम वही formula लगाएंगे, gain upon CP into 100. It will be cutting here and it will getting the gain percent. 33 and 1 by 3% is the gain percent here. Now let's see the third question. Jocelyn marks her goods at 30% above the cost price and allows a discount of 25%. देखिए क्या कह रहा है, Jocelyn marks her goods, अपने सामान को जो मार्क प्राइस करती है at 30% above the cost price. कॉस्ट प्राइस से 30% अब उसका मार्क प्राइस होता है.
तो कॉस्ट प्राइस हमें कुछ मानना पड़ेगा, यहाँ दिया हुआ नहीं है। अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन द मार्क प्राइस, और डिस्काउंट 25% देती है मार्क प्राइस पर। फाइंड आउट गेन और लॉस परसेंट। तो जो भी हमारे पास डिस्काउंट है, सीपी हम सपोज कर लेंगे, एमपी हम मान लेंगे, तो हम जो भी 30% से ऊपर का कॉस्ट प्राइस हम लगाएंगे उनके, सॉरी एमपी कॉस्ट प्राइस का 30% और प्लस 30% कॉस्ट प्राइस सीपी प्लस 30% ऑफ सीपी, ये हो जाएगा हमारे पास एमपी। और एमपी के ऊपर 25% डिस्काउंट दिया हुआ है, फिर हमारे पास लॉस और गेन आएगा क्योंकि एसपी निकल जाएगा वहां से। देखिए यहाँ है क्वेश्चन 3, सीपी इज इक्वल्स टू एक्स रुपीज, एमपी इज इक्वल्स टू एक्स इंटू 30 into x by 100, 30% of x, that is equals to x by 10, 1010 का 13x by 10. This is the MP here. CP is there, MP is there, and discount is 25%. Discount कितना हो जाएगा? ये तो डिस्काउंट परसेंट है, रेट ऑफ डिस्काउंट है, सो डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 13x by 10 into 25 by 100, and it will be cutting here. This will become this. डिस्काउंट इतना हो गया, तो एमपी एसपी हमें निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। एसपी कितना हो जाता है? एमपी माइनस डिस्काउंट। सो एमपी इज 13 by x by 10 minus 13x by 40. It will be solved here and we will get this answer. This is the SP and SP is less than CP. So there is implies here the loss. SP less है CP से। CP कितना था हमारे पास? x रुपीज है। CP यहाँ कितना दिया हुआ है? x रुपीज हमने सपोज किया था, बट यहाँ हमारे पास SP आया है 39 by x, 39 by 40 into x. इट मीन्स कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, इट मीन्स कुछ ग्रेटर होगा वैल्यू। तो SP ग्रेटर, SP लेस, सॉरी 39 by 40 है, इट मीन्स यहाँ कुछ पॉइंट में डेसिमल नंबर देगा, तो ये CP SP लेस हो जाएगा CP से। सो देयर इज अ लॉस and loss is equals to CP minus SP, x minus 39x by 40. It will be getting here the x by 40 is the loss here, and loss percent, same formula, loss by CP into 100. CP is this and loss is this into x into 100. This will be getting here this. Is this clear? Now there is a question number 4 here. Let's see, there is the question number 4. In the question number 4, there is given here that how much percent above the cost price should a shopkeeper mark his goods that after allowing a discount of 20% on the mark price he gains 12%. How much percent above the cost price? Cost price से कितना ज्यादा शॉपकीपर मार्क करेगा कि his goods that after allowing a discount, कि वो 20% का डिस्काउंट भी दे दे तो भी मार्क प्राइस, तो भी उसे 12% का गेन होता है। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले कह रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस में कितना इंक्रीज कर दे, कितना ज्यादा कॉस्ट प्राइस कर दे कि उसका जो मार्क्ड प्राइस कि उसे 20% अगर वो डिस्काउंट भी दे देता है तो भी उसके पास 12% का गेन रहता है। देखिए कैसे करेगा। There is the question number 4. Let us suppose that there is the mark price that is x rupees. डिस्काउंट कह रहा है 20% दे रहा है, तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा? x by 5. तो SP हम यहाँ से निकाल सकते हैं। सेलिंग प्राइस कितने में उसने बेचा, इतने का डिस्काउंट दे करके उसने उस सामान को x minus x by 5 that is 4x by 5 में उसने बेच दिया, बट यहाँ भी उसे गेन परसेंट हुआ 12% का। तो CP कितना हो जाएगा? अगर गेन परसेंट है और CP है हमारे पास, SP है, तो हम CP आसानी से फॉर्मूला होता है हमारे पास, निकाल सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए स्टूडेंट्स इसमें क्या निकालना है और कैसे निकालना होगा। अगर हमें SP निकालना है, CP निकालना है, तो CP निकालने के लिए, सॉरी SP निकालना है तो CP और गेन होना चाहिए। CP के लिए हमें SP और गेन परसेंट होना चाहिए, तो CP निकल जाएगा। गेन के लिए गेन परसेंट और CP का होना जरूरी है। तो सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। CP हमने मान लिया कि 100 रुपीज है, तो गेन कितना हो जाएगा? गेन परसेंट इंटू CP अपॉन 100 दैट इज 12 रुपीज। सो CP SP हो जाएगा CP प्लस गेन 100 प्लस 12, 112 रुपीज हो जाएगा SP यहाँ पर। सो अब हमें इस इक्वेशन को फर्स्ट वाला और सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है, इन दोनों स्टेटमेंट से हम कह सकते हैं ये SP है, ये SP है, तो क्या ये दोनों SP इक्वल नहीं हो सकते? यस, SP इक्वल ही होगा दोनों का। फ्रॉम स्टेटमेंट 1 and 2, 4x by 5 is equals to 112 and x is equals to, x की वैल्यू निकालनी है तो 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो दिस विल बी द
140 rupees. MP amount of MP above the cost price, that is 140 minus 100, that is 40 rupees. Amount is equals to 40%. Is this clear, students? Now there is a question number 5. In the question number 5, there will be asking here that the Rohit marks his goods at 40% above the cost price, allows a discount of 5% for the cash payment to his customer. कह रहे हैं कि गुड्स के ऊपर 40% अगर हम उसका कॉस्ट प्राइस अबोव भी कर दें और 5% का डिस्काउंट करें कस्टमर के लिए, तो व्हाट विल बी द एक्चुअल प्रॉफिट, तो उसे एक्चुअल प्रॉफिट कितना गेन होगा इफ ही रिसीव्स दिस अमाउंट आफ्टर अलाउइंग द डिस्काउंट. अगर वो डिस्काउंट करने के बाद कितनी अमाउंट रिसीव करता है 1064, तो उसे कितना प्रॉफिट होता है ये आपको निकालना है. तो लेट्स सी देयर द क्वेश्चन नंबर 5. ये गिवन है. एमपी कह रहे हैं कि मार्क प्राइस कितना हो जाना चाहिए 40% अबव द कॉस्ट प्राइस. तो मार्क प्राइस कितना हो गया 40% ऑफ सीपी ऑफ प्लस सीपी, डिस्काउंट 5% गिवन है, एसपी 1064 है. तो एमपी कितना हो जाएगा, एमपी एसपी इंटू एसपी और डिस्काउंट परसेंट दिया होता है तो एमपी निकाल सकते हैं. तो एमपी हमने निकाला फॉर्मूला लगा करके एसपी इंटू 100 बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट. ये हमने सारी चीजें पुट कर दी और यहाँ पर हमने सोल्व किया तो ये हमारे पास आ गया 1120 रुपीज. सो लेट सीपी इज इक्वल्स टू एक्स रुपीज, देन एमपी इज इक्वल्स टू 40 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 100 इंटू एक्स. इट विल बी गेटिंग हियर. सीपी को हमने सपोज कर लिया तो एमपी कितना हो जाएगा, सीपी अगर हमारे पास ये है तो एमपी हो जाएगा 40% ऑफ सीपी इन प्लस सीपी. ये हो जाएगा हमारे पास एमपी. ये हमने एमपी इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट विल बी गिवन हियर एमपी इज इक्वल्स टू 40% ऑफ सीपी. सीपी इज एक्स एंड डिवाइडेड बाय परसेंट के लिए हम 100 लगाएंगे एंड प्लस सीपी इज एक्स हियर. सो इट विल बी डन हियर. एमपी हमारे पास 1120 दिया हुआ है. 2x प्लस 5x डिवाइडेड बाय 5. अगर हम एलसीएम लेंगे 5 तो हमारे पास 2x प्लस 5x डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा. 1120 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर 7x हो जाएगा तो 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 160 इंटू 5 दैट इज 800 रुपीज. तो x आ गया हमारे पास 800 और x हमने सपोज क्या किया था दैट इज सीपी हियर. सीपी को हमने x माना था तो ये यहाँ पर 800 सीपी आ गया. तो प्रॉफिट कितना हो गया एसपी माइनस सीपी. एसपी हमें दिया हुआ है 1064 माइनस 800 दैट इज 264. नाउ देयर इज द क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है जीएसटी 12% दिया हुआ है और कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा. देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, मिस्टर कुमार वेंट टू हिज विद फैमिली टू ए मॉल. एक मॉल में गए मिस्टर कुमार और वहां उन्होंने एक साड़ी खरीदी जो कि 12,500 रुपीज की थी और क्लॉथ्स खरीदे. क्लॉथ्स किड्स के लिए क्लॉथ्स खरीदे जिनकी रेंज थी 9,280 रुपीज और एक शर्ट खरीदी अपने लिए जिसकी कॉस्ट थी 10,445. द जीएसटी चार्ज ऑन द परचेजिंग इज 12% और कह रहे हैं कि जीएसटी चार्ज किया गया था वहां पर 12%. व्हाट इज द टोटल अमाउंट दैट मिस्टर कुमार हैज पेड. तो मिस्टर कुमार ने कितना पे किया टोटल मनी, तो वो हम निकालने के लिए क्या करेंगे टोटल अमाउंट निकालेंगे, उसके ऊपर 12% का जीएसटी लगाएंगे और उसको ऐड कर देंगे. देखिए कैसे, देयर इज जीएसटी 12%, कॉस्ट प्राइस टोटल कितना हो गया ये हमने ऐड किया तो 32,225. सो इट विल बी द जीएसटी अमाउंट. जीएसटी अमाउंट कितना हो जाएगा हमारे पास, इस अमाउंट का जो अमाउंट गिवन थी कॉस्ट प्राइस था उसका 12% निकालिए, ये अमाउंट आपके पास हो जाएगा जीएसटी अमाउंट. तो अब इन दोनों अमाउंट्स को ऐड कर देंगे, इस अमाउंट को और इस अमाउंट को, तो हमारे पास टोटल अमाउंट कितनी पे की थी मिस्टर कुमार ने वो निकल जाएगा. इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट HOTS question here. There is mark price of an article is this and the rate of GST is this. A shopkeeper allows a discount of 20% and still makes a profit of 10%. Find the original cost price of the article and the selling price including GST. आपको दिया हुआ है मार्क प्राइस, रेट दिया हुआ है, शॉपकीपर उसके ऊपर 20% का डिस्काउंट करता है लेकिन उसके बाद भी उसके पास 10% का प्रॉफिट रहता है. तो ओरिजिनल कॉस्ट बतानी है, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस बताना है और एसपी बताना है, जीएसटी बताना है. देखिए एमपी दिया हुआ है 3500, जीएसटी दिया हुआ है 12%. इट विल बी गिवन हियर एंड वी हैव टू फाइंड हियर द जीएसटी अमाउंट. जीएसटी अमाउंट कितना हो जाएगा, देखिए जीएसटी अमाउंट कितना हो जाएगा. जीएसटी अमाउंट हो जाएगा जो भी मनी था 3500 इंटू 12, उस मनी का
12% निकाल देंगे, 420 रुपीज हो जाएगा। जीएसटी अमाउंट, तो एसपी कितना हो जाएगा, 3500 एमपी था और जीएसटी 2420 लग गया, तो टोटल अमाउंट एसपी जितने में वो बेचना चाहेगा उसे 3920 रुपीज में बेचेगा। सो डिस्काउंट 20% हो गया। नाउ एसपी इज इक्वल टू 3920 माइनस 20% ऑफ 3920। इसका 3920 का 20% माइनस कर देंगे तो एसपी आ जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ 20% डिस्काउंट लगाना है। और एसपी क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट अमाउंट। तो डिस्काउंट की जो अमाउंट है वो 784 है, तो 784 इसमें 3920 में से माइनस करेंगे, 3136 आंसर आ जाएगा। प्रॉफिट कितने का हुआ, 10% का। और सीपी कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, 3136। डायरेक्ट फॉर्मूला है एसपी इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस प्रॉफिट परसेंट। दिस विल बी डन हियर 2850.90। Okay students, this will be done here. Okay, bye students, have a nice day. Thank you.